Hi students of class 10th in subject information technology. Today you will learn networking fundamentals. This is a part of your CBSE syllabus in vocational skills. Students, you better know what is network. Network is a collection of different devices and computers, and you know very well what is the advantage of using network. We can share anything using a network. We can save our money and time using a network. Interconnected computers are forming a network in computer lab. You can see sharing hardware and network allows computers or users to share software and data. A computer that is not connected to a network is known as standalone computer. जब कंप्यूटर सिंगल होता है तो उसे कहते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर. It is also called node. A computer connected to a network is known as a workstation or a node. Sometimes it is also called host. Right now I will be discussing with you benefits of networking. नेटवर्किंग करने के एडवांटेज. फर्स्ट, इट ब्रेक्स द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, कॉस्ट एंड टाइम. इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू टेलीफोन नेटवर्क. इससे बहुत टाइम सेव होता है, कॉस्ट सेव होता है, डिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कितनी भी डिस्टेंस से आप वर्क कर सकते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ डाटा, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स कैन बी ट्रांसमिटेड एंड शेयर थ्रू इट. ये कोई प्रकार का डाटा हो हम इसको शेयर कर सकते हैं. इट एनहेंस द कम्युनिकेशन. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग. नाउ I will discuss about the types of networks. Student, there are various types of networks you have learned in previous class. For example, LAN, WAN. As per the area spread, we can classify in LAN, WAN and WAN. Local area network, small computer network that are connected in a localized area. For example, office building or a factory are called local area network. The key purpose of LAN is to serve its users in sharing, resource sharing especially. Hardware and software resources are shared through LANs. ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है. LANs are spread up to 1 किलोमीटर. ये वर्क स्टेशन है यहाँ पर, और वर्क स्टेशन कनेक्टेड है एक सर्वर से. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. अंडरस्टूड? इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क देयर आर नेटवर्क स्प्रेड ओवर सिटी. जब कभी नेटवर्क को सिटी तक स्प्रेड करते हैं, यानी कि बड़े बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है. राइट नाउ आई विल नॉट डिस्कस इन डिटेल, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में डिस्कस करूँगा. वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? दीज नेटवर्क स्प्रेड अक्रॉस द कंट्रीज नोन एज वैन्स. Group of computers that are separated by large distances and tied together. It can even be a group of LANs that are spread across the several locations and connected together to look like one big LAN. बहुत सारे LANs को मिलाकर WAN बनता है, जहाँ पर कि स्मॉल एरियाज को जोड़कर बड़े एरिया बन जाते हैं. WANs link computers to facilitate fast and efficient exchange of information in lesser cost and higher speeds. इसकी कॉस्ट हाई होती है और कॉस्ट कम होती है. टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट रोल्स. Component on a network plays some important roles in a network. Based on the component roles, computer networks can be classified into two categories: client-server network and peer-to-peer network. ये मैंने आपको पहले अप्रैल में मई में डिस्कस किया था, क्लाइंट सर्वर क्या होता है. राइट नाउ आई विल डिस्कस इन शॉर्ट. क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क में एक सर्वर होता है जिससे कि क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं. सर्वर प्लेज a role to provide services to the clients on the network as per their request. Services that are served by the server
might provide include user authentication, file storage, internet access, hardware sharing, etc. These are the services provided by server. Now you understand it better. What is server? Now, what is client? The role of the client is to provide a workstation for networks to use users work on the client computer, and as per their needs and requirements the servers on the client server network serve them. क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जिस पर के यूज़र वर्क करता है. यूज़र अपनी नीड के हिसाब से सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर से वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली उसके क्लाइंट पर वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है और रिसोर्स डाउनलोड हो जाता है. नेक्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क. इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर इज़ नो स्पेशलिटी डिजाइन सर्वर. इसमें कोई भी स्पेशल डिजाइन सर्वर नहीं होता. इट इज़ नॉन डेडिकेटेड सर्वर. एवरी कंप्यूटर कैन वर्क एज अ क्लाइंट एंड एज अ सर्वर डिपेंडिंग अपॉन द नीड. इनमें कोई भी कंप्यूटर सर्वर का वर्क कर सकता है और कोई भी दूसरे कंप्यूटर को क्लाइंट मान सकता है. पीयर टू पीयर नेटवर्क्स आर हार्ड टू टेक डाउन एज ईच नोड वर्क्स इंडिपेंडेंटली. इसमें कोई भी नोड इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के. रोल्स कैन बी स्विच बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर एज शोन इन द फिगर. दिस इज अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और सेकेंड इज पीयर टू पीयर नेटवर्क. आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा. यहाँ पर एक डेडिकेटेड सर्वर होता है और पीयर टू पीयर नेटवर्क में एक नॉन डेडिकेटेड सर्वर होता है. नॉन डेडिकेटेड मतलब इट कैन वर्क एज अ सर्वर और क्लाइंट एट एनी टाइम.